सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन होता था यहाँ पे, अभी अमेंडमेंट ये हुआ है कि टैक्सेबल वर्ड ओमिट हो गया, और ये ओमिशन किसने किया है? इट इज ओमिटेड बाय द CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018. तो ये अमेंडमेंट है कि सिर्फ टैक्सेबल ये वर्ड डिलीट हो गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल पर्सन? A person who is required to be registered under GST. Who is a taxable person? A person who is required to be registered under GST. Is that clear? Now let's read it together. Can we all read it together? Yes, everybody. Import of services by a person from a related person outside India or from his establishment located outside India in the course of furtherance of business will be treated as supply. Do you all realize if this importation of service is getting covered in schedule 1, what is its meaning? This is without supply. I को C का साथ, sorry, this is without consideration. When importation of service is getting covered in schedule 1, हम schedule 1 सीख रहे हैं, तो इसकी meaning क्या है? This is without consideration. मतलब C का साथ नहीं है, तो अभी B तो चाहिए. B चाहिए प्लस क्या चाहिए? रिलेटेड पर्सन चाहिए. B is there plus there is related person plus there is related person. Now what do you mean by related person? Understand, here related person is the same thing, that definition that we have learnt already. So if the import is happening from a related person in the course of business, even if it is without consideration, it will be treated as supply. Not only related person ही नहीं है, यहाँ पे आपका खुद का establishment भी होगा इंडिया के बाहर, तो भी ये import treat किया जाएगा. Even if it is your own establishment outside India, it will be treated as supply. Okay, तो क्या हो रहा है? Importation. किस चीज का importation? Service का. Importation of what? Service. Importation of service without consideration. But whom are you importing from? Related person or your own establishment outside India. Is it happen in the course of business? Yes, then it will be treated as supply. बराबर है क्या? You have some space there, right, below the table. Yes, so we'll write down. Importation of S from whom? Related person or own establishment outside India. Importation कहाँ से हो रहा है? From related person, own establishment outside India. क्या मिसिंग है यहाँ पे? C is not there, C cross, but B has to be there. फिर क्या होगा? Supply. Importation of service from a related person correct? लिखा? Importation of service from related person, own establishment or outside India and without consideration and for business purpose in the course of furtherance of business, this will be treated as supply. Correct. Let's read now. Example, John Limited USA is holding company of VB Limited. Now listen, shh. Students, related person आपने याद है क्या? Definition, हाँ, holding, you are having control over the other, the common person is controlling you, you both are controlling somebody else, same family members, ये क्या होता है? सब कुछ related person. John Limited USA is the holding company of VB Limited India. VB Limited imports business consultancy services from John Limited in September 2018 in the course of furtherance of business. बराबर है? Now listen, is C missing? Yes. But is B there? Yes. Are you importing
from related person, yes. So are all the conditions satisfied? Importation of service from related person and without consideration in the course of business, yes, this is going to be treated as supply. Write down, this is covered under schedule 1, this is covered under schedule 1 and treated as supply. This is covered under schedule 1 and treated as supply. बराबर है क्या? Example 2. Just read example 2 on your own. Carefully read it. पक्का इंपोर्ट है क्या? ये सप्लाई होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों? You can import from two people, either related person or own establishment outside India. So is the importation happening from own establishment outside India? Yes. Is it free of cost? Is C missing? Yes. Is it legal consultancy services? And then we are going to say yes, it is relating to their business. And then it will be treated as supply. Write down, this is supply as per schedule 1. This is supply as per schedule 1. Correct? This is supply as per schedule 1. Read the third one. Read the third example. एक ही बार आंसर देना है, सोच के सही आंसर देना है. तो आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम नॉट इन अ हरी. थिंक, मैंने जो जो पॉइंट्स बोले सारे सेटिस्फाई हो रहे तो देखो और फिर ही मुझे आंसर चाहिए. गलत आंसर मत देना. सप्लाई और नो सप्लाई? नो सप्लाई. व्हाट इज मिसिंग? बी इज मिसिंग. What is missing here? Because you are doing this for your newly constructed house in Delhi. तो तुम दिल्ली के घर के लिए, मतलब ये पर्सनल हो गया. यहाँ पे B is also missing. हमने क्या लिख के लिया था अभी जस्ट? हमने क्या लिखा था देखो, importation of service. लेकिन it should be without consideration, but this should be from related person. Is it from brother? Yes. Family member is a related person. बराबर. यहाँ पे C is also missing and B is also missing. Brother is a family member, so brother is a related person. Related person से importation हो रहा है, but it should be at least in the course of business. तो वो missing है, तो इसीलिए this is not a supply. Yes, so write down the answer. This is not treated as supply. Supply of goods from a place, a non-taxable territory, to another place in the non-taxable territory without such goods entering in India. Now understand, a person in India, again we are going to draw, okay, a person in India, a person in India has ordered goods from China and has asked the person to transport the goods to US. Listen, taxable territory is a territory. Taxable territory is India, where GST is applicable. जहाँ पे GST applicable होता है उसको TT बोलते हैं, मतलब taxable territory. जहाँ GST applicable नहीं है उस territory को क्या बोलते हैं? Non-taxable territory. समझा क्या? So, a Indian person is ordering goods, and but the goods are not entering India at all. So, question of supply does not arise. So it was high time that you clarify this and you gave an amendment regarding this. So I have ordered for goods. Goods are moving directly from China to India, China to USA, and the goods are not entering India at all. So this is not neither a supply of G nor a supply of S, and therefore no GST. पहले ऐसे diagram बनाओ.
तुम्हारा चाइना और यूएसए क्या हो गया, उल्टा। हाँ तुम बनाओ ना, तुमको मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम बना दे वैसा। डन, लिखो जल्दी, चलो नोट इट डाउन फास्ट, आई डिक्टेट अ सेंटेंस। लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी to another non-taxable territory, supply of goods from a non-taxable territory to another non-taxable territory, to another non-taxable territory by a Indian person is covered in Schedule 3 into bracket goods do not enter India, goods do not enter India, goods do not enter India। तो क्या ट्रीट किया जाएगा, therefore not a supply, no GST, therefore not a supply, no GST। therefore not a supply, no GST। डन है क्या? हाँ आगे 8A पढ़ो, therefore not a supply, no GST, लिखा क्या? एट ए, रीड 8A। ओके आपको क्योंकि कस्टम्स पता नहीं है, थोड़ा सा मुझे आपको वो बताना पड़ेगा। आपने सेंटेंस पढ़ो, 8A में क्या लिख के दिया है बताओ जरा। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। एक्सप्लेनेशन, नाउ वेयरहाउस मीनिंग गुड्स हैव द सेम मीनिंग एज कस्टम्स, तो मैं आपको वैसे बताती हूँ ना, ध्यान से सुन के लेना। कस्टम्स में होता क्या है, नाउ लिसन, इफ there is the Mumbai port, okay, now Mumbai port में goods आ गए now listen, now they have come in the, they are in customs की custody में रहते। तुम सुन के लो ना, बहुत important part है, हाँ तुम इग्नोर, हाँ 8, हाँ हाँ अब सुनो, any port, there is a port wherein the goods have reached in the customs and the goods are lying in the customs warehouse और अभी तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ। क्लियरेंस मतलब एक प्रोसेस होता है, जब आप कस्टम सीखोगे फाइनल में यू विल अंडरस्टैंड। अर्लियर वी यूज्ड टू टीच कस्टम्स इन इंटरमीडिएट आल्सो, बट आफ्टर जीएसटी कस्टम्स को अभी फाइनल में शिफ्ट कर दिया। पहले हम लोग वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी और कस्टम्स, ये हम लोग सिलेबस इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे, तो अभी वो सारा चला गया, सर्विस टैक्स गया, वैट गया, उसकी जगह पे अभी आप क्या सीखते हो, सिर्फ जीएसटी। सो अंडरस्टैंड, एक रूल मतलब कस्टम्स में ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि होम क्लियरेंस मतलब आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करनी होती है, सो यू पे कस्टम्स ड्यूटी एंड देन यू टेक द गुड्स आउटसाइड द कस्टम्स पोर्ट। कस्टम्स पोर्ट से जब आप गुड्स लेके इंडिया में आते हो तो दैट टाइम इट इज सेड, अच्छा ये गुड्स अभी इंडिया पहुंचे, मतलब जब तक वो वेयर हाउस में होते हैं दे आर ट्रीटेड एज इफ दीज गुड्स आर आउटसाइड इंडिया, जब तक इसके ऊपर होम क्लियरेंस नहीं होता है। जब आप वो वेयर हाउस से निकलते हैं गुड्स, ट्रक में आप लोड करोगे, आप कस्टम्स ड्यूटी पे किए बिना उसको क्लियरेंस नहीं मिलता। आफ्टर पेइंग कस्टम्स ड्यूटी गुड्स को क्लियरेंस दिया जाता है और फिर वो ट्रक में आप लेके जा सकते हो। तो till that point it is treated as if these goods are outside India, as if these goods are outside India. So if they are lying here in a warehouse, now before home clearance, suppose A
इज द इंपोर्टर। तो ए ने गुड्स को इंपोर्ट किया, ए को जाना है कस्टम्स पोर्ट पे, कस्टम्स पोर्ट पे जाके सारा ये करना होता है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। बहुत कस्टमर्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, सो आपको जाके वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है, टैक्सेस पे करने होते हैं और गुड्स का क्लियरेंस करना होता है। वो कल जाने ही वाला है, उसको कॉल आता है कस्टम से कि आपके गुड्स पहुंच गए, एजेंट का कॉल आता है, तो ही सेज ओके आई विल कम टुमारो एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज। वो कस्टम्स पोर्ट मुंबई पोर्ट के लिए जाने ही वाला है, तब उसको अपने कस्टमर का कॉल आता है, एंड सो कस्टमर का कॉल आता है एंड से कस्टमर इज बी। कस्टमर बी सेज आई वांट द गुड्स, अरे आई एम वेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, मुझे अर्जेंटली ये गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसे अच्छा अभी मैं उधर ही जा रहा था क्लियरेंस के लिए, सो व्हेन आई सेल दीज वेयर हाउस गुड्स टू यू, इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, तो एज इफ कि बी को ही आप बोल सकते हो कि तुम ही जाओ उधर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दो, तुम ही ड्यूटी पे कर दो और खत्म कर दो। सो जो इनवॉइसिंग होगा इंपोर्टर और कस्टमर बी के बीच में होगा, बट इसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। यू नो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज ट्रांजिट सेल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट सेल। ट्रांजिट सेल मतलब व्हाइल द गुड्स आर स्टिल इन मूवमेंट, उसके बीच में तुमने फर्दर सेल कर दिया ना, उस सेल को क्या बोलते हैं? ट्रांजिट सेल। और उस फर्दर सेल पे हम टैक्स नहीं लगाते, जस्ट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, जस्ट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। सो ट्रांजिट में कैसे है? ट्रांजिट का मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकल मूवमेंट में होना चाहिए। warehouse goods are also in transit because they are still not in India. Goods which are warehoused are treated as if these goods are outside India. Warehouse goods as per the customs के हिसाब से they are treated as if these goods are outside India. तो अभी तक ये इंडिया पहुंचे ही नहीं, मतलब ये ट्रांजिट में। तो ट्रांजिट सेल won't be treated as supply and it will not be liable to GST. So ये जो सेल बिटवीन इंपोर्टर, ओरिजिनल इंपोर्टर जिसने गुड्स मंगाए थे, वो क्लियरेंस के लिए जाने ही वाला था, उसके पहले ही उसको कस्टमर बी का फोन आया, ये जो ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच में, नॉट सप्लाई। आप पहले डायग्राम ड्रॉ करो तो मैं डिक्टेट करूंगी सेंटेंस। वेयरहाउस्ड गुड्स, सुनो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो, वो ए और बी कुछ मत लिखना, मैं डिक्टेट करूंगी। सिर्फ इंडिया, मुंबई पोर्ट और वहां पे वेयरहाउस्ड गुड्स ऐसा ड्रॉ करो। तू क्यों आया रे आगे उसको कंपनी देने के लिए? तू, मैंने उसको बोला था ना अकेले बैठने को। ओके, लिसन लिसन, क्वाइट क्वाइट। सब लोगों का लिख के हो गया क्या? अब लिखो वेयरहाउस गुड्स, वेयरहाउस्ड गुड्स, warehoused goods are treated, warehoused goods are treated to be outside India, warehoused goods are treated to be outside India. Okay, these are the goods lying in the warehouse, these are the goods lying in the warehouse, these are the goods lying in the warehouse before customs clearance, before customs clearance, before customs clearance. Okay, now write down, if before clearance, if before clearance importer A, if before clearance importer A sold the goods to B, importer A sold the goods to B, the sale between A and B, the sale between A and B, the sale between A and B
will be covered under schedule 3, will be covered under schedule 3. कहाँ कवर होगा? विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 3. बराबर. अच्छा, कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 का मतलब क्या? नो सप्लाई नो जीएसटी. लिखो, नो सप्लाई नो जीएसटी. लिखने का सब कुछ लिखने का. Therefore, नो सप्लाई. आगे आएगा ना. एक बार बी ने ले लिया, बी ने आगे सेल किया तो सप्लाई होगा ना. हाँ. His question is बी ने गुड्स लिया और उसने आगे सेल किया तो वो सप्लाई है ना. चलो 8B रीड करो. एक मिनट डाउट है क्या किसी को कुछ? डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, नाउ रीड 8B. 8B. बोलो, बोलना. हाँ, फायर लगी तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं. मतलब देर इज नो जीएसटी, नो कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगा तभी. हाँ, अगर तुमने इंश्योरेंस करवाया होगा तो तुमको नहीं ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाते ना हम लोग. व्हेन वी कॉल फॉर गुड्स आउटसाइड इंडिया वी डू ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है ना. हाँ, हाई सीज में भी अगर वो सी में भी अगर कुछ हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सिंकिंग हो गया गुड्स का, तो क्या होगा? फिर इंश्योरेंस आप करवा सकते हो. यस. अच्छा, ये 8B थोड़ा सिमिलर लग रहा है क्या आपको? क्या है 8B? बोलो. Supply of goods by the consignee to any person by endorsement of documents of title to the goods after the goods have been dispatched. कहाँ से रे? From the port of origin. वो port किधर located है? Outside India, but before clearance for home consumption. मतलब पता है क्या? अभी ना actually goods transit में, physically transit में, मतलब ओके. नाउ राइट. तुम लोग लिखो, ये हाई सीज में है. हाई सीज मतलब दिस इज आउटसाइड 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो पानी है, इट इज कॉल्ड एज हाई सीज में है. मतलब दे आर आउटसाइड. लिसन ना, वो डिस्पैच हो चुके हैं फ्रॉम वेयर एवर यू हैव कॉल्ड फॉर द गुड्स. दैट इज व्हाई आई एम शोइंग देयर इन वाटर. बराबर है. इन ट्रांजिट, ये भी ट्रांजिट सेल है. 8A भी ट्रांजिट था, लेकिन 8A बिकॉज दे आर इन द वेयर हाउस, बट फॉर कस्टम्स दे ट्रीटेड एज इफ दे आर आउटसाइड इंडिया, इसलिए वो भी ट्रांजिट हो गया. और ये तो एक्चुअल ट्रांजिट में, मतलब फिजिकली अभी तक इंडिया पहुंचे ही नहीं है. ये करो ड्रॉ. करो जल्दी, लिखो. अभी हंस रहे हो ड्राइंग पे, यही तुमको हेल्प करेगा. यू विल से थैंक गॉड ऐसा कुछ किया हुआ है तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है. लिखो जल्दी. ये एग्जाम के लिए नहीं है रे, अंडरस्टैंडिंग के लिए. हाई सीज लिखो. गुड्स ये कहाँ है? हाई सीज. A is the importer. A is the importer. तुमको ड्राइंग आता है ना, अभी देखा है ना तुम लोगों ने. चलो जल्दी करो. Draw na India and draw water and draw a ship. Come on, fast. वो चालू है ना, करो ना उधर से. हाँ चलो, मैं नहीं कर रही. ऑन है ना उधर. हो गया. राइट डाउन. A importer has sold goods to B. A importer has sold the goods to B. Has sold the goods to B.
while the goods are in transit, while the goods are in transit. Such sale between A and B will be covered under Schedule 3. Therefore, no supply, no GST. Students, who is a promoter? Promoter का definition has been given under the RERA. RERA is a act जो Real Estate Development and Regulation Act है. Okay, now listen. Very recently this act has been added on, so it's a new act. यहाँ पे क्या होता था, बहुत बार बिल्डर के यहाँ कस्टमर जाके फ्लैट बुक करते हैं, पैसे दे दिए, बिल्डर ने पोजेशन डिले कर दिया. इसमें नुकसान किसका होता है? कस्टमर का. कस्टमर बोलता है मेरा ईएमआई चल रहा है, मेरा इंटरेस्ट का मीटर चालू है, यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट, एटलीस्ट लेट मी स्टार्ट स्टेइंग. मेरा घर भी रेडी नहीं है, आई एम स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, उधर रेंट भी भर रहे हैं, इधर ईएमआई भी भर रहे हैं, तो कैसे चलेगा ऐसे? तो वी वर वेटिंग कि 2 साल में होगा, 2 का 4 हो गया, 4 साल 5 साल. सो बहुत बार ऐसा हुआ है. बिल्डर्स क्यों ऐसे करते थे? कोई कंट्रोल नहीं था. मतलब क्या होता है, कस्टमर बोलता है मैंने तो 90% पैसे दे दिए, आपको स्लैब्स के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं. कैसे पैसे देने पड़ते हैं? स्लैब्स के हिसाब से. तो मैंने तो पैसे दे दिए, तो मैंने पैसे दे दिए, तो तुम क्यों नहीं मेरा काम क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे पैसे जो मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए दिए, तुमने वो उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर दिया. तुमने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लैंड खरीद लिया. सो यू आर मिस अप्रोप्रिएटिंग द फंड्स. अगर इस प्रोजेक्ट के पैसे तो इसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करो. यू अरेंज योर ओन प्रॉफिट में से तुम यूज करो कि बाबा जो प्रॉफिट होता है उसमें से कहीं और लैंड खरीदना है, कुछ और करना है, करो. व्हाई एम आई सफरिंग? बिकॉज ऑफ योर मिसमैनेजमेंट. एंड दैट इज व्हाई दिस एक्ट वाज देयर. उसमें बहुत सारी बिल्डर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है. तो उस रेरा एक्ट जो है, सो इट इज रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. तो ये जो एक्ट है इसके अंडर प्रमोटर वर्ड डिफाइन किया है. प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स certain buildings or project. So basically it is promoter is a person who is into construction business. Now ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे पहले ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ. सर्विस नंबर क्या है बताओ जरा मुझे? 5B. हाँ, एनी पर्सन, ये कौन है? सप्लायर. और रेसिपिएंट कौन है? प्रमोटर. प्रमोटर मतलब कौन? A builder. So any person who is into the business of, who has constructed a building, okay, a individual building, multiple buildings under a project. So there is a promoter. मुझे ये समझा कि पर्सन है और प्रमोटर है. नेचर ऑफ सर्विस जरा बताओ क्या है? टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस. क्या है बताओ? व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस? आइदर देयर इज व्हाट? रीड देयर. व्हाट इज देयर गिवन इन योर नोट्स? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और FSI. FSI. Now what is FSI? Listen. What is the full form of FSI? Floor Space Index. What does that mean? It means that if I have a plot and the plot of land, my area of that is 5,000 square feet. I had told you earlier also. Now like in Pune, mostly we have an FSI of 1. मतलब जहां आप, अगर आपका 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कितनी फ्लोर स्पेस का कर सकते हो, एक रेशियो डिसाइडेड है. सो आई एम अलाउड टू कंस्ट्रक्ट अप टू ओनली 5,000. कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? 5,000. तो मैंने 1,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स बनाए, तो मैंने मैक्सिमम आई कैन कंस्ट्रक्ट अप टू 5,000. But if somebody wants to, now in certain places the FSI is higher. So in Bombay, city like Mumbai, you have a higher FSI. So over here also certain city area जो होता है, अभी जहाँ हम है, प्रेस्टीज पॉइंट है, बाजीराव रोड है, लक्ष्मी रोड, ये सारा क्या बोला जाता है? सिटी एरिया. दिस इज अ सिटी एरिया. यहाँ पे FSI थोड़ा सा ज्यादा है. तो FSI अगर 2 FSI होगा, मतलब क्या? किसी का 5,000 का प्लॉट होगा तो वो कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है? 10,000. ज्यादा FSI होने से बिल्डर का फायदा होता है.
वो ज्यादा उसी प्लॉट पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बट हम ज्यादा एफएसआई नहीं देते क्योंकि एक रेशियो मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनती जा रही है, वहां पे ना तो पानी का सप्लाई हो रहा है। क्यों? बिकॉज पहले पीपल यूज टू स्टे इन बंगलोज, अभी वो बंगलो आप बिल्डर को बेच देते हो, डेवलपमेंट राइट्स देते हो, वो वहां पे एक बंगलो की जगह पे अभी 10 फैमिलीज रहने को आ गई वहां पे। हाउ इज द वाटर सप्लाई गोइंग टू बी सफिशिएंट? हाउ इज द पार्किंग गोइंग टू बी सफिशिएंट? हाउ इज द ट्रैफिक एरिया गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो हर सिटी के लिए, हर जगह के लिए एक रेशियो फिक्स किया जाता है, ठीक है, रेशियो फिक्स किया। अभी ऐसा होता है कि मेरे पास एफएसआई पड़ा है जो मैंने यूज नहीं किया, मैंने 5000 का प्लॉट खरीदा, या यू नो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मेरा प्लॉट जो है थोड़ा सा पार्ट रोड वाइडनिंग में चला जाता है। ओके, सो गवर्नमेंट बोलती है अभी हम रास्ते बड़े कर रहे हैं, या एयरपोर्ट आ रहा है तो आपका, या मेट्रो, अभी मेट्रो का काम चल रहा है तो कहीं कहीं ऐसी प्लेसेस है जहां पे जिनका प्लॉट है, साइज आपका कम हो रहा है क्योंकि वो मेट्रो में यूज हो रहा है, तो गवर्नमेंट वहां पे आपको क्या देती है? गवर्नमेंट बोलती है या तो पैसे ले लो या हमसे एफएसआई ले लो। क्या ले लो? एफएसआई। मतलब तुम हमसे एफएसआई ले सकते हो। सो आई कैन टेक दिस एफएसआई, सो आई हैव एन एडिशनल एफएसआई विच आई कैन सेल टू अ बिल्डर। तो बिल्डर ये एफएसआई खरीद सकता है, मतलब वो अगर एफएसआई खरीदेगा तो 5000 के स्क्वायर फीट पे उसको, उसका खुद का कितना अलाउड है? 5000, प्लस उसने किसी और से 5000 का एफएसआई खरीदा, तो नाउ ऑन दैट प्लॉट हाउ मच कैन ही कंस्ट्रक्ट? 10,000। एफएसआई इजी और कम इजीली नहीं मिलता है, काफी एक्सपेंसिव होता है और होना भी चाहिए, बिकॉज आगे आपको कैलकुलेशंस पता होती है कि बिल्डर अगर एफएसआई यूज करके 5000 स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा। सेम इज द एग्जांपल इवन ऑफ प्रेस्टीज पॉइंट। प्रेस्टीज पॉइंट डिडंट हैव द 4th फ्लोर, सो 3rd फ्लोर तक ही था, तो अभी बिल्डर ने यहाँ पे 4th फ्लोर कैसे कंस्ट्रक्ट? द सेम बिल्डर, नॉट टिल 3rd फ्लोर, इट इज सोसाइटी के अंडर है, बिल्डर ने सोसाइटी को दे दिया सब कुछ, सारे बेच दिए, जो भी ऑफिसेज है, सेल हैज टेकन प्लेस। नाउ दिस 4th फ्लोर हाउ डिड ही कंस्ट्रक्ट एडिशनली? ही बॉट एफएसआई and then he utilized FSI from some other plot over here because he knows यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो 4th फ्लोर जैसे ही उसने कंस्ट्रक्ट कर दिया तुरंत सेल हो गया। तो अभी भी 4th फ्लोर इज अंडर बिल्डर, तो बिल्डर क्या करता है? अभी ये सब कहाँ? सोसाइटी को हैंड ओवर कर देगा, सेल कर देगा, सोसाइटी को हैंड ओवर कर देगा, मतलब हु विल टेक केयर ऑफ इट्स मेंटेनेंस? इसके आगे सोसाइटी विल टेक केयर। तो ऐसे कि यहाँ पे पहले 4th फ्लोर नहीं था तो एडिशनल लिफ्ट ऐड कर दी, सोसाइटी ने बोला कि तुम एडिशनल और एक 4th फ्लोर कंस्ट्रक्ट करोगे तो हमारे ऊपर कितना बर्डन आएगा। देन ही सेड ओके, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, तो उसने एडिशनल करके दिया, या लिफ्ट एडिशनल 2 लगवा के दिए, तो ऐसे होता है। तो यही एक एग्जांपल है। तो जैसे इस बिल्डर ने प्रेस्टीज पॉइंट का जो बिल्डिंग का 4th फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डर ने किसी से एफएसआई खरीदा होगा, दैट पर्सन इज द सप्लायर एंड दैट बिल्डर इज द प्रमोटर। सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है? एफएसआई, और बिल्डर इज द रेसिपिएंट। इज दिस लायबल फॉर जीएसटी? यस। Who will pay the GST on that? Recipient will pay the GST on that under RCM. तो प्रमोटर जो है वो GST पे करेगा अंडर RCM। समझा क्या? पक्का? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, जल्दी जल्दी लिखो, चलो। क्या बोलता है रे? मशीन? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और एफएसआई कौन पे करेगा? प्रमोटर विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। प्रमोटर विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। क्लियर है क्या? सच्ची में वन ऑफ योर डिसाइड, यू ऑल प्रिपेयर 16-14 सर्विसेज। तो अभी जो पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वन स्टूडेंट कैन जस्ट टॉक अबाउट 6 वेरी फास्ट, क्विकली, नॉट इन डिटेल, बट यू कैन जस्ट से कि ये सर्विस सप्लायर है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, रेंटिंग है तो आरसीएम है, सिंपल लाइक दिस यू हैव टू जस्ट टेल। करेक्ट? तो आप देखो कौन करेगा, मुझे बताना आज क्लास के बाद। कोई एक स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट्स, प्रिपेयर एंड कम एंड देन टेल हियर ऑन मंडे। हाँ हाँ, देन वील डिसाइड ना, अगर 2 लोग है तो वील स्प्लिट द सर्विसेज, है ना? You will do, okay. ठीक है, आगे? Even you will do, okay. All right. Now let's read 5C. चलो 5C पढ़ते हैं। Long term lease of land 30 years or more against consideration in form of up
upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges or any other names? I'll tell you क्या होता है. बहुत बार सुनो ना, आपको पता नहीं रहता. Now listen. लॉन्ग लीज, स्टूडेंट्स बहुत बार इंडस्ट्रियल एरियाज होती है ना, वहां पे गवर्नमेंट ओन्स द लैंड, वो बेचती नहीं है लैंड, आपको क्या देती है? लॉन्ग लीज देती है. तो उस लीज पे आप जो भी अमाउंट पे करोगे, इट्स जस्ट लाइक अ रेंट, बट इट हैज अदर वर्ड्स. अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे प्रीमियम है, सलामी है, लीज है, पीरियोडिक रेंट है. सो ये जो अमाउंट है, इज दिस लायबल फॉर जीएसटी? यस. हु विल पे द जीएसटी ऑन दैट? रेसिपिएंट अंडर RCM. Correct? Is that clear to everybody? Yes. So long-term lease of land against consideration in form of upfront amount called as premium, salami, cost, development charges. Yes. So let's just write down. 5C. Supplier कौन है? Any person. Now if you are giving this long-term lease only to a promoter, सेम मीनिंग ऑफ प्रमोटर दैट आई टोल्ड यू, मैं वो भी डिक्टेट करती हूँ. इनफैक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर अंडर रेरा? क्या सर्विस दिया आपने? लॉन्ग टर्म लीज. लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड. ओके, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड. और लीज को क्या बोला जाता है? लीज कैन बी कॉल्ड एज लीज रेंट. लीज रेंट कैन बी व्हाट? इट कैन बी कॉल्ड एज अपफ्रंट अमाउंट. इट कैन बी कॉल्ड एज प्रीमियम. इट कैन बी कॉल्ड एज सलामी. ठीक है. अच्छा, ये किसको दिया आपने रेंट पे? बाय द वे, रेसिपिएंट कौन होना जरूरी है? प्रमोटर. देन आरसीएम इज एप्लीकेबल. देन व्हाट इज एप्लीकेबल? आरसीएम. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? मीनिंग ऑफ प्रमोटर, एनी पर्सन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर? एनी पर्सन हु constructs building. Constructs building or causes the construction. मतलब वो खुद नहीं कंस्ट्रक्शन करता ना, ही may outsource it and get it done, और he causes the construction. तो either वो खुद से करेगा या किसी से करवा के लेगा. So any person who causes the construction or does the construction. न्यू दिस इज. नाउ सी, इसका डेट देखो कभी आया ये. नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 CTR. CTR का फुल फॉर्म मतलब होता है सेंट्रल टैक्स रेट. आर का मतलब होता है रेट. कोई आपको नोटिफिकेशन नंबर नहीं पूछने वाला, उसका मीनिंग नहीं पूछने वाला. इट्स अ नोटिफिकेशन नंबर 29th नोटिफिकेशन ऑफ द ईयर 2018. एंड CTR मतलब दो टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं, एक सिर्फ CT होता है और एक होता है CTR. CT मतलब सेंट्रल टैक्स का जो नोटिफिकेशन है और रेट से रिलेटेड होता है ऐसा कुछ, तो इट इज CTR में आता है. डेटेड, क्या डेट है इसका? 31 दिसंबर 2018. तो इसके नोटिफिकेशन के थ्रू इसको RCM में डाल दिया. तो ऐसे बहुत बार नोटिफिकेशंस तो इतने आते हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन द नोटिफिकेशन. ओके. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे लिखो? बिजनेस फैसिलिटेटर. अगेन दिस इज जस्ट नॉट एग्जैक्टली एन एजेंट, बट नाम थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, बिजनेस फैसिलिटेटर. बट एक्चुअली वो एजेंट काइंड ऑफ अ काम ही कर रहा है. एंड बैंक किधर है? लोकेटेड इन TT. नाउ बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट का मीनिंग देखो. आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू, बैंक्स को क्या होता है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर रख के बैंक बोलते कि चलो रूरल एरिया में हमारे पास इतने कस्टमर्स नहीं है, तो बैंक ऑन व्हील्स होता है,
तो यू नो एटीएम में गो टू द बैंक इन अ रूरल, एटीएम में गो ऑन व्हील्स इन अ रूरल एरिया, ये फैसिलिटेटर है वो जाता है रूरल एरिया में, समझाता है कि आप इस बैंक का अकाउंट खोलो, यहाँ ये सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, तो एक फैसिलिटेटर अपॉइंट किया जाता है, या उसको इवन बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्ड यूज किया है। कौन सा वर्ड है? बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सो एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस बैंक को बोला गया है, सी बैंक्स इतनी स्प्रेड आउट नहीं हुई है, बैंक्स देर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे इतनी सारी ब्रांचेस वगैरह नहीं है, तो हाउ डू वी रीच टू पीपल? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप अ एंटायर ब्रांच। आई can't go and set up an entire branch, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉइज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो, it's not necessary, not required. Then what do? We can appoint an agent and we tell him, you go there and reach to different people. You go there, fix one day, every Saturday you will go there and take account opening form लेके जाओ, उनको help करो, form fill up करो. So all these services are provided by a business facilitator. Okay, so here see services of business facilitator or correspondent. Now business facilitator or correspondent is an intermediary. कौन है ये? Intermediary. So it's an intermediary between the bank and its customers. Of course there's a proper, it's very much authorized by RBI, उनकी guidelines के हिसाब से आप appoint करते हो. Thus the role of a business facilitator is to ensure greater financial inclusions and increasing the outreach of the bank. आप चाहते हो कि बैंक का जो reach है, okay, the bank should be able to reach maximum people. हर जगह branch खोलना possible नहीं है, it's not possible and not advisable. You can't have so much of overheads unnecessarily. Rural area में एक 10 customers आपको मिलने वाले, तो उन 10 के लिए आप पूरा का पूरा ब्रांच सेटअप नहीं कर सकते, तो यू अपॉइंट अ इंटरमीडियरी, और इस इंटरमीडियरी को बोलते हो कि जो भी आपने काम किया हम आपको क्या देंगे, उसके लिए कमीशन देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, सो जो भी आपको फीस मिलेगी, इज दैट गोइंग टू बी लायबल फॉर जीएसटी? यस, एंड इफ इट इज लायबल फॉर जीएसटी, हु इज गोइंग टू पे द जीएसटी? बैंक. परफेक्ट, इजी. एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया, दे आर वेरी वेरी सिमिलर सर्विसेज नाउ, करेक्ट? सो लेट्स ड्रॉ. आप खुद कर पाओगे क्या? हाँ, सप्लायर कौन होगा? हाँ, नंबर 12 है क्या सर्विस का? वेरी गुड. चलो, सप्लायर, रेसिपिएंट, मैं डायस है ना वहां से अभी इधर शिफ्ट कराऊंगी. मैं बोल रही हूँ, या तो सबको उधर उधर शिफ्ट कराऊंगी, एक यहाँ से आवाज उठ रही है, चुपचाप बैठो. देखो, ड्रॉ करो जल्दी. मैं नहीं कर रही हूँ, तुमको खुद करने का. हाँ करो. मुंह बंद, कान चालू, हाथ चालू, समझे? मुंह बंद करके बैठो अभी आप. Who is the supplier here? या क्या नाम है इसका? और बिजनेस करस्पॉन्डेंट. इसको क्या नाम से बुला सकते हो? कैन यू कॉल हिम एज अ, इंस्टेड ऑफ एजेंट वी हैव गिवन हिम अ बेटर नेम, आरबीआई के अंडर है, सो वी आर कॉलिंग हिम एज अ इंटरमीडियरी. समझा? हाँ, लिखो वहां पे. और रेसिपिएंट इज अ बैंक लोकेटेड इन टीटी. कौन टैक्स पे करेगा? बैंक, अंडर आरसीएम. सप्लायर को आप जो भी कंसिडरेशन दोगे इस काम के लिए, इसका क्या काम होता है? कि बैंक को सर्विसेज देना, बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, बैंक के नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करना, बैंक का पेनिट्रेशन होना चाहिए इनटू रूरल एरियाज एंड लॉट ऑफ अदर एरियाज. सो इट हेल्प्स अ बैंक टू पेनिट्रेट इनटू वेरियस एरियाज. करेक्ट है ना? नेक्स्ट वन. रेडी? यहां तक हो गया क्या सबका? ऑल डन? अब आगे देखो. मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा, आपको समझा बिजनेस फैसिलिटेटर का काम क्या होता है? हाँ, इट हेल्प्स द बैंक टू इंक्रीज इट्स मार्केट और इंक्रीज इट्स मार्केट पेनिट्रेशन. ऐसा एक वर्ड दूं क्या? सेंटेंस डिक्टेट कराऊं? हाँ, लिखो लिखो फिर. बिजनेस फैसिलिटेटर helps the bank
लिखो, बिजनेस फैसिलिटेटर हेल्प्स द बैंक to increase its market reach and penetrate. To increase what? Yes, its market reach and penetrate. तो आपको कस्टमर्स बढ़ाने तो पूरा का पूरा ब्रांच थोड़ी जाके हम खोलेंगे वापस, एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट करो, ही विल हेल्प यू डू दैट. परफेक्ट. हाँ, अब मुझे 13th वाला पॉइंट एकदम करेक्टली आप रीड करके मुझे आपने समझाना है. जल्दी करो. 13th वाला सर्विस. अगेन दिस इज न्यू, सेम 12 and 12 and 13 got introduced at the same time. Read it fast. अब ये किसका एजेंट है? बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट है. ओ, सो नाउ दैट फैसिलिटेटर का काम इतना बढ़ गया है, या बैंक ने उसको बोला है कि तुम्हें ये 20 एरियाज है, यहाँ पे हमारे पास इतने कस्टमर्स नहीं है, यू हैव टू लुक एट और टेक केयर ऑफ दिस 20 एरियाज, 20 प्लेसेस. सो फैसिलिटेटर सेज आई कांट गो इंडिविजुअली एट दीज प्लेसेस, so he appoints an agent. फ्री में तो काम नहीं करेगा एजेंट. एजेंट को क्या देना पड़ेगा? पैसे देना पड़ेगा. तो तुम कंसिडरेशन दोगे उसको, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. ये तो सप्लाई हो रहा है. अब इसका जीएसटी कौन पे करेगा? बिजनेस फैसिलिटेटर, बिकॉज नाउ ही इज द रेसिपिएंट. मतलब लिसन, कैन वी से लाइक दिस, सो ही हैज अपॉइंटेड एजेंट्स, उसके पास 2 लोग काम करते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग वर्किंग फॉर whom? बिजनेस फैसिलिटेटर. ये कौन है? ये रेसिपिएंट है. बराबर है क्या? हाँ. नाउ लिसन, ये क्या करेगा? बिजनेस फैसिलिटेटर विल पे हिम व्हाट? कमीशन. तो ये कमीशन देगा इस एजेंट्स को. हाँ. क्या इस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा. कौन पे करेगा? फैसिलिटेटर विल पे इट अंडर आरसीएम. नाउ व्हाट आई एम ड्रॉइंग इन ब्लू कलर, नाउ लुक एट इट. दिस इज 13th नंबर सर्विस. नाउ कमिंग टू 12 जो हमने सीखा, यहां पे इस केस में बिजनेस फैसिलिटेटर बिकम्स द सप्लायर एंड ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक एंड बैंक बिकम्स द रेसिपिएंट. तो जो कमीशन बैंक्स उसको देगी, उसके लिए आरसीएम में कौन पे करेगा? बैंक. दिस व्हाट वी लर्नड इन सर्विस नंबर 12 एंड व्हाट यू आर लर्निंग नाउ एजेंट्स का इज सर्विस नंबर 13. सो ये एक, दोनों का एक सर्विस हो गया और ये एक हो गया. समझ में आ रहा है क्या? बिटवीन द एजेंट एंड फैसिलिटेटर देयर इज वन सर्विस एंड बिटवीन द फैसिलिटेटर एंड बैंक देयर इज अनदर सर्विस. ये ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? थोड़ा इजी करके लिखाऊं क्या? इजी करके लिखाती हूँ, रुको. मैं थोड़ा इजी करके 13 नीचे लिखती हूँ, फिर देखो आपको कौन सा लिखना है. सी दिस. नहीं, बैंक ने फैसिलिटेटर को रखा. बैंक बोलते हैं आई गिव यू दिस मच कमीशन. तुम्हारा काम बढ़ गया तो तुम एम्प्लॉइज रखो, तुम तुम्हारे लिए एजेंट रखो, दैट्स योर प्रॉब्लम. वी विल गिव यू ओनली कमीशन फॉर योर, जो अपना डिसाइडेड है. हाँ. तो सप्लायर कौन है इधर? एजेंट्स. किसको सर्विस दे रहे? रेसिपिएंट. रेसिपिएंट कौन है?
फैसिलिटेटर, लीटेटर, ये सप्लायर बना। इसके ऊपर का ये लिखो ना तुम, ये कौन पे करेगा? आरसीएम। ये क्या दे रहा है उसको? कमीशन, बराबर ना? एंड देयर इज वन मोर थिंग हैपनिंग बिटवीन द रेसिपिएंट एंड द बैंक। बैंक इज पेइंग कमीशन। ये हमने कहाँ सीखा? 12 में। आपको 12 और 13 कंबाइन नहीं करना है तो आप मत करो, आप सिर्फ 13 के लिए इतना पार्ट भी लिख सकते हो, बराबर है? हाँ बोलो, a little loudly, I can't hear you. Yes, can, of course, every person, why only business facilitator? Every person who pays GST under RCM is going to claim the set off because it's on your inputs. So that's a common rule for all. लिख के लिया? Note it down fast. Whatever you want to write. 13 के मैंने 2 पार्ट्स लिखे, आपको जो इजी लगता है अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो लिखो। मैं इधर 2 ऑप्शंस दे रही हूँ लिखने के, कोई बच्चे जो लिख भी नहीं रहे, सही है क्या? लिखिया? हाँ, आर यू डन? करेंगे, फिर बीच में जो स्किप हुए वो करेंगे। क्यों? 15 और 16 आर स्पेसिफाइड अंडर IGST। 14 नंबर तक ये किसने स्पेसिफाई किया है? CGST एक्ट ने। एंड 15 एंड 16 नंबर आर स्पेसिफाइड अंडर द IGST एक्ट। सो फर्स्ट वील डू द 14 वन प्रॉपरली। सो जो CGST एक्ट में वो 14 पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो 13 के बाद देखो क्या नंबर है? विच सर्विस इज कवर्ड? ओके, ए चलो जल्दी करो, रीड 14th वन, जल्दी पढ़ो। इधर एक करेक्शन कर देना, बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP नहीं आना चाहिए इधर। डज नॉट इंक्लूड, ये तुम्हारा कंपनीज एक्ट में तुमको बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन किया है क्या? आपने सीखा है? सो व्हाट इज द डेफिनेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। So what is the definition of, is this, एक second, is this the definition of a body corporate in Companies Act? Will you just check, can somebody just get their notes tomorrow and show it to me? What is the definition of a body corporate under Companies Act 2013? Yes, okay. So that I'll discuss again when I look at the definition tomorrow. Okay, meanwhile listen, कल देखने वाली हूँ मैं। 14th one, security services provided by a security personnel to a registered person. Very important. Security services are provided. Now any person other than a body corporate is the supplier. So यहाँ पे कौन सी services है? supplier है, वो क्या supply कर रहा है? security personnel supply कर रहा है। मतलब security guard है, ऑफिस के लिए आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड मंगाया है, तो एजेंसीज होती है जो लोग ये सप्लाई करते हैं। नाउ दे आर सप्लाइंग दिस टू होम, लिखा आपने सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर क्या लिखा? सप्लायर। लिखो जल्दी। रजिस्टर्ड पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी कौन है? रेसिपिएंट। नाउ व्हाट इज कवर्ड ओवर हियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सर्विस कौन सा नहीं है? ओके, it covers supply of manpower for security purpose at society, offices, commercial spaces, bungalows. You have these, bouncers or bodyguards जो होते हैं, so
ये सिक्योरिटी पर्सनल है, ये क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल, सप्लाइंग दी सिक्योरिटी पर्सनल. Here there must be a supply of man or woman for security. कर दो उधर, for security, supply of man or woman for security. Why? यहाँ पे वर्ड यूज किया है पर्सनल. क्या यूज किया है, वर्ड यूज किया है पर्सनल. Personnel means a person has to be provided for security purposes. So there is an agency which is into the business of providing security guards. What is not covered here? C point nahi. What is not covered here is dog sniffers or investigation service. Now listen, there are securities agencies. कुछ agencies है which provide persons. There are some securities which provide dogs which are trained for sniffing, जहाँ पे अगर कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ पे threat है, bomb का threat है or something like that. So there's a squad of dogs which is coming there. So there are agencies who are providing these services. So ये services इस RCM में covered नहीं है. यहाँ पे सिर्फ persons को security के लिए supply करने का service is covered under this part, right? Now over here body corporate does not include individual, HUF or firm including LLP, AOP, BOI, cooperative society or a society. Now tomorrow I will just have a look at your definition of body corporate from the Companies Act. Now let's write down here, let's note it, diagram draw करेंगे 14th के लिए. Listen, 14th. So there is a agency and registered person. So there is a agency and there is a registered person. This person is in the taxable territory. Agency is the supplier and registered person is the recipient. What is the nature of service? Person, supply of persons for security purpose. Then this is covered under RCM. Correct है क्या? Listen. Now इसमें और एक ड्रॉ करना, ये A हो गया, ये B. There is a agency, ये जो सप्लायर है is a body corporate. Supply of, जिनको जगह नहीं है वो नहीं लिखेंगे. No arguments on that. Those who don't have place will not write. I don't want any argument on this. Simple. 3 साल में CA बनने वाले, you have to behave professionally. So supply of persons for security purpose. Registered person, टैक्सेबल टेरिटरी में है, ये रेसिपिएंट है, लेकिन यहाँ पे RCM not applicable. No RCM here. Who will pay tax? Agency. Why? Because the supplier is a body corporate. RCM कब apply होता है? When the supplier is any person other than a body corporate. Yes. So no RCM because supplier is body corporate. So how
हाउ इज ITC इज यूटिलाइज? ITC इज क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. द पर्सन में यूज दिस टू पे हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी. ये जो ITC यूज करते हैं हम, ITC कैन बी यूज ओनली टू पे माई टैक्स लाइबिलिटी. कैन आई यूज इट टू पे माई इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स? नो. कैन आई यूज इट टू पे माई टैक्सेस अंडर RCM? नो. नो, टैक्सेस अंडर RCM भी पे करने के लिए मुझे सिर्फ कैश लेजर ही यूज करना होता है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. नाउ ITC क्रेडिट यूटिलाइजेशन रूल. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? IGST का ITC का आपको सेट ऑफ लेना है. आपका इनपुट टैक्स है IGST, इसका सेट ऑफ किसके अगेंस्ट पहले लोगे? IGST. सेकंड अगेंस्ट CGST, SGST और UTGST. इस सेकंड पॉइंट के आगे लिखना इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन. तो हर एक के आंसर्स अभी अलग अलग आने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है सबके आंसर सेम आएंगे. तो यहाँ पे आप लिखोगे इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन. Any order and any proportion. What about the CGST का ITC? It can be used first for paying CGST की liability. तो उसके आगे अगर वर्ड लिखना है तो वो भी लिख दो. CGST का क्या पे करने के लिए यूज करने वाले हो? Liability. उसके बाद S नहीं, IGST. IGST की liability. और SGST किसके लिए यूज हो सकता है? SGST की लायबिलिटी, बाद में IGST की लायबिलिटी. फोर्थ को स्टार मार्क देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर यूजिंग CGST का इनपुट टैक्स और SGST का इनपुट टैक्स, यू विल हैव टू फर्स्ट फिनिश IGST. IGST जीरो करने के बाद ही यू कैन स्टार्ट यूजिंग CGST और स्टार्ट यूजिंग SGST. सो इस फोर्थ पॉइंट को स्टार मार्क दे दो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, ये अमेंडमेंट अभी CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2019 से हुआ है. Then CGST ITC is not used for SGST का liability. SGST का ITC is not used for paying CGST का liability. To pay the IGST liability, this is the sequence that you have to follow. First IGST, then CGST and then SGST. Wherever I have written SGST, you can always substitute it even by UTGST. Okay. Now we'll solve the question here. जो question है, I'll quickly tell you what was the old system also. Okay. Now पहले हम ये question किस system में solve करेंगे? ये जो question दिया है, will you first solve it under the new system? Yes. Okay. Here it is. मैं आपको एक ओल्ड मेथड से भी बाद में बताती हूँ, इधर ही मैं आपको ओल्ड मेथड भी बता दूंगी. राइट नाउ, मिस्टर एक्स अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम. दैट मीन्स रेगुलर स्कीम मतलब ही इज नॉट अंडर कॉम्पोजिशन. रेगुलर स्कीम का मतलब क्या है? अंडरलाइन रेगुलर स्कीम. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर स्कीम? नॉट अंडर कॉम्पोजिशन. रेगुलर स्कीम इज नॉट अंडर कॉम्पोजिशन. ध्यान देना, ये इसी चैप्टर से जो भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, एक TOS और टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और एक इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा. Mr. X, a supplier, pays goods, of goods pays GST under regular scheme. What is the meaning of regular scheme? He is not following composition scheme. Mr. X is not eligible for any threshold limit. He has made the following outdoor taxable supplies. तो ऊपर आगे जो दिया है 8 और 3 लाख, ये क्या है? उसका सेल. ये क्या है? आउटवर्ड, आउटडोर टैक्सेबल सप्लाई है, ये आउटवर्ड सप्लाईज है उसके. He has also furnished information in respect of purchases made by him. Now what are the purchases? Interstate purchases of goods 3 lakhs, interstate purchases of goods, एक इंट्रा है और एक इंटर है, so 3 lakhs का, और interstate का कितना है? 50,000. Mr. X has the following ITC at the beginning, मतलब उसके ई क्रेडिट लेजर में ये बैलेंस था एट द बिगिनिंग. लास्ट मंथ का उसका जो भी एक्स्ट्रा सेट ऑफ है जो अभी भी बचा हुआ है, ये उसका ITC ओपनिंग बैलेंस है. CGST का 30, SGST का 30 और IGST का 70. Now the rate of C and S and I is 9, 9 and 18 respectively. Both inward and outward supply का जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, it is exclusive of taxes.
ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC की इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होने चाहिए, सारी कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया. कंप्यूट द नेट GST पेएबल बाय मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, मेक सूटेबल अजम्पशंस एज रिक्वायर्ड. ना सबसे पहले मेरा ITC होगा कैसे, ओपनिंग वाला ITC प्लस ड्यूरिंग द ईयर का ITC. तो मुझे देखना है पहले मेरे पास I कितना अवेलेबल है, C कितना अवेलेबल है और SGST का इनपुट टैक्स कितना अवेलेबल है, एंड देन आई विल डिसाइड कि उसको किस तरह से आपको राइट करना है, राइट, उसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है. सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट स्टेप. क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 3 और इंस्ट्रक्शन क्या है क्वेश्चन का, GST payable. So write down question number 3, computation of GST payable. You may, if you want, divide the page into 2 or write properly so that, और यार जो notes extra लगेंगे उसके लिए आप attach कर सकते हो बाद में sticky notes, है ना. So computation of GST payable. Computation of GST payable. First, उसमें first step available ITC. Available ITC. Are there 3 taxes involved? Yes. So we'll also have to make 3 columns. ITC जो हमारे पास available है वो 3 टाइप के taxes का available है students. Particulars. उसके बाद क्या है, IGST पहला है, फिर CGST लिखो और SGST. इसमें पहला पॉइंट है ओपनिंग ITC. ओपनिंग मतलब ऑलरेडी जो मेरे पास अवेलेबल है ओपनिंग ITC. करेक्ट, पहला क्या है ओपनिंग ITC. ओपनिंग ITC में फर्स्ट क्या है, कितना है ओपनिंग ITC, IGST का कितना है 70,000, CGST का कितना है 30 और SGST का कितना है 30. Is that clear? Then during the month, right? So whatever is the ITC during the tax period. Add second point ITC during the period. मतलब आपका जो भी इनवर्ड सप्लाईज होगा, परचेजेस होगा, वो हम ऐड करेंगे. सो ऐड ITC ड्यूरिंग द पीरियड. लिखा सबने. पहले हमने क्या परचेज किया, ए पॉइंट क्या परचेज किया हमने ड्यूरिंग द पीरियड, देयर इज इंट्रा स्टेट परचेज. इंट्रा स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा, यस CGST 9% ऑन 3 lakhs, SGST also 9% on 3 lakhs. Please write it in the correct respective columns. So CGST कितना आएगा 27,000, SGST 27,000. B इंटरस्टेट परचेज पे IGST आएगा. इंटरस्टेट परचेजेस कितना हुआ है मेरा, इंटरस्टेट परचेजेस 18% ऑन 50,000. Take a total and write down available ITC. Don't tell me the amount, just note it down. ITC. Done everybody? Yes. It's a very easy question. You have to be ahead faster than me, right? Yeah. हो गया ना लिख के सबका? Okay, let's write down now. ये मेरा ITC जो अवेलेबल है वो हमने नोट कर दिया. सबका लिख के हो गया है ना? Together we are doing it, right? Now
Write down what are we going to do? We are going to compute the GST payable. Second point, computation of GST payable. कैसे कंप्यूट किया जाएगा? वापस 3 कॉलम्स बनेंगे. आपका सेल्स है, आपकी लायबिलिटी. कैसे निकालते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल? जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई माइनस जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाई. वेरी गुड. सो पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स. IGST, CGST, SGST. GST on outward supply. GST on outward supply. क्या क्या आउटवर्ड सप्लाई है? आपके सेल्स क्या है देखो. इंट्रा स्टेट सेल कितना है? 8 lakhs. सो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? CGST 9% on 8 lakhs. SGST 9% on 8 lakhs. So that's how much? 72,000. Write it in the correct column. SGST and CGST के कॉलम में लिखना. What is your tax liability? GST on outward supply minus GST on inward supply. दूसरा कौन सा है? ये A हो गया. B क्या है लिखो? Interstate supply. Write it with me. Interstate supply. IGST लगता है. IGST का रेट क्या है? 18%. 18% on 3 lakhs. Correct. So write that 54,000 in the column of IGST. Correct. अब मेरी लायबिलिटी क्या क्या है? अभी ध्यान से सुनना. एक रफली आप लायबिलिटी के टोटल ले लेना एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरी लायबिलिटी क्या है. 54,000 प्लस 72 प्लस 72 लिया कैलसी पे. कितना आ रहा है? 1,98,000. और मेरे पास ITC अवेलेबल कितना है? -79 -57 -57. 1,93,000 इज ITC अवेलेबल. और मेरी लायबिलिटी कितनी है? 1,98,000. ओके. सो व्हाट इज योर टैक्स पेएबल? 5,000. हाँ. तो रफली आप पहले ये तो समझ के लेना कि ऐसा है. अब देखते हैं कि सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन देना है सो दैट यू गेट द बेस्ट आंसर. बिकॉज IGST का आगे सेकेंड प्लेस का ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड. नॉट 2 minutes you don't write. Okay, what I will do here, pay attention. What I will do here is I will say less ITC. सबसे पहले कौन सा लेने का? IGST का. तो मेरे पास पहले IGST का अमाउंट कितना अवेलेबल है? 79. उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? IGST. तो यहाँ पे कितना चाहिए? 54. उसका सेकंड बचेगा कितना? 79 माइनस 54 कर दो 25. कैन आई डू 25 फर्स्ट अगेन CGST? यस. कैन आई डू 25 फर्स्ट अगेन SGST? या कैन आई डू इट इन एनी प्रोपोर्शन? यस. अगर नॉर्मली सब C और S इज इक्वल सो इट्स बेस्ट यू टेक इट इक्वल, है ना. तो नॉर्मली यहाँ पे मेरा बचा कितना? 79 माइनस 54,000 करो कैलसी पे. 79,000 माइनस 54 25. उसका हाफ ऑफ कर दो 12,500 एंड 12,500. सो आई विल टेक सेकेंड हियर 12,500 एंड माई सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो हियर 12,500. डिड आई फिनिश IGST? Can I now move on to the other liability? Yes, I will now move on to CGST. Now CGST मेरे पास अवेलेबल है कितना? 57. अब मुझे चाहिए कितना? एट दिस स्टेज मुझे कितना चाहिए? 72,000 माइनस 12,500 करो.
72 में से ऑलरेडी मुझे सेट ऑफ मिल गया ना 12,500 का, तो बचा कितना 59,500. ओके ग्रेट. तो कैन आई टेक दिस 57 आई कैन यूटिलाइज कंप्लीटली? यस. सो आई विल यूटिलाइज इट ओवर हियर. उसी तरीके से SGST ऑल्सो 57 आई कैन यूटिलाइज इट हियर. अब जो मेरा टैक्स पेएबल आएगा ये डैश, ये 2,500 और ये 2,500. कैन somebody get an answer? 5,000 CGST payable? Yes. Can somebody get an answer? 5,000 only SGST payable? Yes. Can you get an answer equal or in any ratio? Yes. But our total should remain 5,000 because आपको किसी भी प्रोपोर्शन में और किसी भी ऑर्डर में आय का सेट ऑफ ले सकते हो. ये जो मैंने दोनों जगह नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है और यहाँ पे भी 2 लिखा है. रीजन क्या है? बिकॉज आई कैन डू इट इन एनी सीक्वेंस, आई कैन डू इट इन एनी प्रोपोर्शन. समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ. सो प्लीज नोट इट डाउन. Are you done? Everybody's done? स्टूडेंट्स नोट लिखो. ये नोट देना एग्जाम में कंपलसरी है. राइट अ नोट. फर्स्ट राइट डाउन. फर्स्ट नोट IGST इनपुट टैक्स. IGST इनपुट टैक्स. Notes IGST input tax will be used first for paying. IGST input tax will be used first for paying what? IGST liability. First for paying IGST liability and then for paying CGST or SGST liability, and then for paying CGST or SGST liability in any order, and then for paying CGST and SGST liability in any order and in any proportion. In any order and in any proportion. Second, before utilizing CGST input tax, or SGST input tax, before utilizing CGST input tax or SGST input tax, we must first finish what? Very good. We must first finish IGST input tax. We must first finish IGST input. Now, when I talk about input tax, I am going to only focus on my inputs.
In this entire chapter we are going to focus only on inputs. Now my inputs मैंने कल ही आपको define करके बता दिया है. My inputs could be capital goods. What are capital goods? Goods that are capitalized in the books. What are second definition I taught you? Goods. What is the definition of goods? Anything other than capital goods. उसके बाद मैंने बताया what is input service. Input service is any service. Of course, common point in all three is they are used for business purpose. Perfect. Now what you have to understand, what do you mean by block credit? Let's talk about any person who's doing some business. Let's say I'm a manufacturer. Manufacturer अपना जो भी business कर रहा है, मैंने एक तरफ यहाँ पे क्या लिखे है, उसके inputs लिखे. अभी inputs के ऊपर उसने टैक्स पे किया है, वो जानना चाहता है कि क्या इस टैक्सेस पेड का मुझे सेट ऑफ मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया कि कुछ inputs are blocked from credit. Some inputs are blocked from credit and this is called as blocked credit, and this blocked credit we are learning under section 17 subsection 5. Now ये जो raw material है, on this raw material students I have paid GST. ओके, इज दिस अ इनपुट? यस. क्या मुझे इसका सेट ऑफ मिलेगा? हाँ. आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. फिर मैंने कुछ मशीनरी खरीदा, लेकिन फिर आई विल हैव टू आस्क द अकाउंटेंट, अरे मशीनरी खरीदने के टाइम जो जीएसटी पे किया वो कैपिटलाइज कर दिया क्या? उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लिया क्या? अगर ले लिया होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर तुमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो कैन आई क्लेम आईटीसी? यस, आई कैन क्लेम आईटीसी. Audit fees, is it a input service? Yes. So can I get ITC? Yes. Now let's talk about car. Car purchased becomes a blocked credit. It is covered under section 17 subsection 5. Now it is a block credit. Oh, ऐसे कितने सारे block credits है, वही exactly मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ. तो what I'm trying to tell you when I talk about a block credit, उन इनपुट्स के ऊपर जो भी जीएसटी आपने पे किया उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा. ऐसी एक लिस्ट दी गई है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. दीज इनपुट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी. इसमें पहला मैंने आपको क्या सिखाया है, सपोज कार, लेट्स इट डजंट से कार, इट सेज अ मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल, in that also there's a very very important amendment that has happened for your attempt. So you're definitely going to get a question on these block credits because block credit पे बहुत ही important amendment हुआ है. Now what is the amendment? Let's understand. Block credit क्या बोलता है? It talks about a motor vehicle. So there is a motor vehicle up to 13 seater. Motor vehicle up to 13 seater is a block credit. Motor vehicle up to 13 seater is a block credit. मतलब any motor vehicle up to a sitting capacity of 13 seaters including the driver's seat, अगर ऐसा 13 सीटर की कैपेसिटी की जो भी व्हीकल आपने खरीदी है उसके ऊपर आपने जो भी जीएसटी पे किया उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा. व्हाट इज द अमेंडमेंट? अमेंडमेंट इज दिस कि पहले कोई भी मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स होता तो हमको सेट ऑफ मिलता ही नहीं था. अभी एटलीस्ट दे सेइंग चलो अबाउट 13 सीटर, मतलब कोई बस है, अगर किसी कंपनी ने बस खरीदी अपने एम्प्लॉयज़ को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए, तो क्या उसका सेट ऑफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग अबाव 13 सीटर. बट अगर किसी कंपनी ने अपने डायरेक्टर के लिए कार खरीदी, अभी दैट कार पे उन्होंने जीएसटी पे किया, तो क्या उसका सेट ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा. तुरंत अकाउंटेंट को बोल देने का कि उसके ऊपर का जो जीएसटी है उसको कैपिटलाइज कर दो और डेप्रिसिएशन ले लो, क्योंकि वैसे भी आईटीसी नहीं मिलने वाला, और जब आईटीसी नहीं मिलेगा इट हैज़ टू बी एडेड इन योर कॉस्ट. It has to be added in your cost. When I'm not going to get ITC, it has to be added in my cost. Is that clear to everybody? Yes. So a motor vehicle up to 13 seater is a blocked credit. And if it is above 13 seater, it is allowable under ITC. आपको ITC मिलेगा. तो इसलिए जो ये कार परचेज है, when I am using the word car, I understand it's just a 5 seater. So 5 seater है, a car is there, and therefore इसके ऊपर जो GST पे किया ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा set off because of section 17 subsection 5. इस कंपनी ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, some 10-year celebration, 15-year celebration, and they had a event where a caterer was called for, and food and beverages की services were provided. Food and beverages is also a blocked credit. तो उस दिन अगर caterer ने मुझे बिल भेजा 1 लाख का और उसके ऊपर GST चार्ज करके दिया, तो
जो जीएसटी चार्ज करके दिया, दैट जीएसटी इज गोइंग टू बी नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ बिकॉज इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट, बिकॉज इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट. सो फूड एंड बेवरेजेस इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ क्योंकि ये एक ब्लॉक क्रेडिट है. अब ध्यान से सुनना. तो ऐसे मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया टू अंडरस्टैंड कि आपके जो भी इनपुट्स होते हैं दे मे बी इन फॉर्म ऑफ इनपुट्स capital goods or they may be in the form of input services. Again, inputs may be in what form? Everybody has to repeat. What are the three forms? कैपिटल गुड्स, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. बराबर. इसके ऊपर के जो भी जीएसटी हमने पे किए मुझे उसका सेट ऑफ मिलेगा. हाँ, सेट ऑफ मिलेगा. लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या इसमें से कोई भी ब्लॉक क्रेडिट वाला असेट है क्या, इनपुट्स है क्या, तो उसका आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ ब्लॉक क्रेडिट. देयर इज अ लिस्ट गिवन ना. क्योंकि ये एक्ट है, लॉ है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता. एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन होता है. जनरली अ 13 सीटर कार is a block credit. However, in some situations it is eligible for ITC. Generally, a 13-seater car, motor vehicle, is a block credit. But in some situations, credit will be allowed. In some situations, credit will be allowed. तो एग्जैक्टली अभी हम ये क्या करेंगे, वी लर्न इट इन फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो एक टेबल है, हम टेबल लर्न करके अंडरस्टैंड करेंगे. विल अंडरस्टैंड द टेबल कंप्लीटली एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन यू अ टेबल वेयर देयर आर एग्जांपल्स एंड सिचुएशंस और आपको बताना है ये ब्लॉक क्रेडिट है या ये अलावेबल क्रेडिट है. और एकदम ध्यान से सुनना है और समझना है. एक भी गलती बाद में उस आंसर्स में की तो मुझे नहीं चलने वाला है, इसलिए ध्यान से अभी सुन के लो और समझ के लो. Now let's understand this block credit. Block credit concept 3 के आगे आप लिख दो section 17(5). Write down section 17(5). लिखा क्या सबने? First point, ITC of tax paid on almost every inputs and input services are on goods and services or both is allowed under GST except a small list of items provided under 17(5). So what is this small list of items provided under 17(5)? Block credit. Yes, उसके आगे लिखो what is this? It is block credit. So small list of items provided under section 17(5) is blocked credit. लिखो. लिखा क्या सबने? The negative list generally is personal consumption, inputs which result in formation of immovable property, telecommunication towers, pipelines laid outside the factory premises. तो ये जो भी taxes होते हैं इसके ऊपर का इनका set off आपको नहीं मिलता. Now what is it? Let us read it in detail. I have divided it into two parts. जो red में ऊपर लिखा है that is block credit. और जो राइट हैंड साइड में आपके है ITC अलाउड इन एक्सेप्शनल केसेस, वो ग्रीन में लिखा है ऊपर. तो ITC इज अलाउड इन सम एक्सेप्शनल केसेस. एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन से सुन के लेना है, क्लास में लर्निंग फिनिश करना है. पहला, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसको स्टार मार्क करके ये पूरा टेबल लर्न. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू आर गोइंग टू गेट दिस इन द एग्जाम. अ प्रॉब्लम ऑन दिस इज डेफिनेटली देयर इन द एग्जाम, ऑलवेज देयर. Block credit, no ITC. First, circle motor vehicles. Motor vehicles not more than 13 की कैपेसिटी, मतलब उसके नीचे आप सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख सकते हो मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर्स. मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज ब्लॉक्ड क्रेडिट. नीचे लिखो मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. लिखा क्या सबने? क्या लिखा जरा दो बार रिपीट करना. मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक क्रेडिट. अगेन, मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक क्रेडिट. बराबर, मतलब मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर ये ब्लॉक क्रेडिट है. अच्छा, अबाउ 13 सीटर ITC मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में है क्या? नहीं है. मोटर व्हीकल ओनली अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक क्रेडिट. इधर लॉजिक कुड बी दिस. ये अमेंडमेंट अभी आया है, 13 सीटर कैपेसिटी का अरेंजमेंट. ये जो अमेंडमेंट है ये अभी आया है. इसके पहले सीधा सिर्फ मोटर व्हीकल पैसेंजर के लिए होगा किसी भी, तो वो ब्लॉक क्रेडिट होता था. हाँ, फिर हमने सोचा कि चलो 13 सीटर के ऊपर है, मतलब अब बस. नाउ कंपनी में हैव कॉल्ड फॉर अ बस टू पिक अप द एम्प्लॉइज, तो दे कैन से इट इज देयर बिजनेस पर्पज एंड देन वी शुड अलाउ इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट अबाउट 13 सीटर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिलो 13 सीटर ऑल्सो समटाइम्स इट इज गोइंग टू बी अलाउड. व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस? अभी एकदम ध्यान से सुनना.
पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अभी ज़रा ऐसे सोचो कि मैंने कार अभी कौन कौन खरीद सकता है। अभी आप ऐसा सोचो कि दिस इज़ अनफेयर, यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट फेयर ऑलवेज। सी अगर आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़, तो मैंने कार खरीदी, वो किस लिए खरीदी? डायरेक्टर के लिए खरीदी, डायरेक्टर के आने जाने के लिए खरीदी। तो ये कार जो आप खरीदते हो इसके ऊपर का जीएसटी का सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल उनका काम ही है लोगों को कार चलाने को सिखाना। तो वो ड्राइविंग स्कूल जब कार खरीदता है, वो ऑब्वियसली अगर आप लॉ मेकर्स हो तो हम आपको आके कंप्लेन करेंगे कि आप ऐसा क्यों लॉ बना रहे हो। अरे बाकी के लोगों के लिए ठीक है, कार में भी जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टर के लिए लिया है, बट हमारे लिए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। I have to buy at least 10 or 20 cars I'm buying, and on that cars whatever GST is there आप सेट ऑफ नहीं दे रहे हो। फिर गवर्नमेंट को ये स्ट्राइक हुआ रहे, हाँ बराबर है, क्योंकि जिनका बिजनेस है टीचिंग ऑफ ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल, उनको तो सेट ऑफ मिलना चाहिए। तो उसको हमने कहाँ कवर कर दिया? एक्सेप्शन में कवर कर दिया। ऐसे ही देर आर पीपल हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जिनका बिजनेस ही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। कि आपको टैक्सीज बुक करनी है, पुणे से मुंबई जाना है या एक्स प्लेस से वाई प्लेस जाना है, सो दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। फॉर देम ऑल्सो, भले ही वो बिलो 13 सीटर हो या अबाउ 13 सीटर हो, फॉर देम इट इज गोइंग टू बी अलाउड एज एन ITC। अगेन अ मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक क्रेडिट। क्या बोलने का? मोटर व्हीकल अप टू 13 सीटर इज अ ब्लॉक क्रेडिट। हाउएवर व्हेन दिस इज यूज्ड इन फॉलोइंग 3 सिचुएशंस आपको सेट ऑफ मिलेगा। मतलब यू आर यूजिंग दिस, यू आर बाइंग द मोटर व्हीकल्स फॉर फर्दर सप्लाई। आपका बिजनेस है कार बेचने का, यू आर बाइंग दिस वाई? फॉर फर्दर सप्लाई। मतलब यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग मोटर व्हीकल्स, और यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, और थर्ड यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ ड्राइविंग स्कूल। यू आर गिविंग ट्रेनिंग रिलेटिंग टू द ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल। समझा क्या सबको? यस। सो ITC शैल बी अलाउड व्हेन इट इज यूज्ड फॉर फर्दर सप्लाई। के आगे लिखो सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, सर्कल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड ड्राइविंग, ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। C पॉइंट के आगे लिखो ड्राइविंग स्कूल। C पॉइंट के आगे क्या लिखा? ड्राइविंग स्कूल। बराबर है क्या? Note, motor vehicle with a sitting capacity up to 13 persons is a block credit. However, if it is used for further supply of motor vehicles or transportation of passengers or for imparting training, it shall be exempt नहीं बोलेंगे, it shall be eligible. It shall be eligible for ITC. It shall be eligible for ITC. बराबर है? Receipt of goods is the second condition. Shh. Stop talking. I am on the second point. Marking with me. Continue. The person taking the ITC must have received the goods. The goods must be received by recipient. Please circle received by recipient. Or another person on his directions. So दो लोगों को goods receive हो सकते हैं. Either आपने क्या क्या highlight किया बताओ मुझे? Received by the recipient or received by another person. Sometimes goods or services may be received by another person on the direction of the recipient. That is, circle ship to X, bill to Y model also included. Students ये मैंने सिखाया आपको ship to X and bill to Y. I taught you in e-way bill. ये बताया कि एक ही e-way bill raise करना sufficient होता है. This model also includes, under this model, goods are delivered to Y, shipping is happening to Y, but the billing is done to X because X is the purchaser. तो परचेजर ही ITC क्लेम करेगा, लेकिन क्या गुड्स परचेजर को मिले नहीं मिले चलता है, गुड्स उसके बिहाफ पे किसी और को मिले तो भी इट इज ट्रीटेड एज रिसीट ऑफ गुड्स. डोंट टॉक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्लीज it would be deemed that X has received the goods in such scenario. So ITC will be available on to X on whose order the goods are delivered to the third person. Earlier bill to ship model was covered only for goods. इसको स्टार मार्क कर दो, very important.
because now it has been made applicable to services under the CGST Amendment Act 2018. Star mark, important amendment. It's a very important amendment that has taken place.